Hello friends, I hope you are learning. So any one of you who are learning, then raise your voice, say hi or hello in the comment box. So good morning everybody. Sorry, actually good afternoon. Do like and share this session before starting so that we can reach as many as possible. So in today's class we are going to discuss about National Payment Corporation of India and some dinosaurs species, some voice of global south, something about G20 and news about UPI Lite. We are going to discuss about partnership for global infrastructure and investment and so on and so forth. So let us see this class in detail. So let me begin the session by many things all around. And just let me share this thing to other people around so that as many as the aspirants can join and they get benefited from the class. So just a second. Many news are coming from G20, how people are interacting with Indian community. Many leaders from across the world are here, and Joe Biden has left already, but apart from him, many other peoples are there who are enjoying Indian food, Indian tourist destinations, Indian places, and so on. So let us start this class with G20 itself having these topics. So what is this about unique about this G20 meeting? Because this G20 meeting has added African Union in G20 itself as a separate entity. Now name is also maybe going to change to G20 World, but this African Union has been admitted formally to G20 Union. Further, PM Modi's vision of Global Biofuels Alliance in terms of providing the biofuels at a global level with clean energy supply for energy conservation and clean energy. So clean and green energy के लिए आप सबको पता होगा कि कैसे बायोफ्यूल्स को यूज़ किया जाता है that are made from sugar cane and the husks or the straws that are remaining from the crops. The next point comes that partnership for global infrastructure investment for infrastructure development across the world. There there should be a partnership, so there should be funding for various projects in the G20 forum. Then there is India Middle East Europe corridor, which is itself a new form of transport, trade, and communication corridor which will facilitate and provide the communication between Asia, Middle East part of Asia to India, that is Bombay, and the other part of world towards Europe. So that is also very important. And pre-existing INSTC, that India's north-south transport corridor, is also there. So let us move towards the topic in detail. Now, India's Middle East Europe corridor that is launched through the medium of G20. G20 में हमने देखा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी लॉन्च किया गया है एंड दिस कॉरिडोर विद सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएई, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोपियन यूनियन. अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो ये कॉरिडोर मुंबई से शुरू होके जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया होते हुए, जॉर्डन होते हुए, इजराइल होते हुए यूरोप तक जा रहा है ना. ये क्या बूस्ट करेगा?
ट्रेड इम्पॉर्टेंटली जो लैंड के थ्रू ट्रेड होता है, बिकॉज थ्रू द ओशन रूट देर इज़ लॉट्स ऑफ टाइम कंजम्पशन। सो समय को कम करते हुए ये इकोनॉमिक्स बेनिफिट को भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ट्रेड की ड्यूरेशन को कम करेगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी। सो ये कैसे होंगे? रोड वाइज कनेक्शन होंगे ये सारे, एंड सम पार्ट ऑफ इट विल थ्रू पोर्ट्स, and it will be also provided through digital connectivity. So you see the route corridor, it is taken from Mumbai, India. It is starting from Mumbai to Dubai, Jebel Ali, then going to Al Gewaifat, then Harad, Riyadh, Al Haditad, Haifa, and Piraeus. So Piraeus तक ये reach कर रहा है. So it will connect the Europe with Asia in faster duration of time. इससे क्या प्रमोट होगा? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ट्रेड, और जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेबल आइटम्स इंडिया से यूरोप में जाते हैं, सच एज स्पाइसेस, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, ये सारे वेरी फास्टर रेट में ट्रांसपोर्ट होंगे, जिससे कि टाइम को रिड्यूस किया जा सकेगा और यूरोपीय कंट्रीज़ को बहुत सारी बेनिफिट्स मिल पाएंगी. सो देयर शुड बी सी रूट कनेक्शन एज वेल एज द रेल रूट कनेक्शन ऑल्सो. नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि पहले से मौजूद है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पूरे कंट्रीज़ को, इंडिया की कंट्रीज़ यानी कि इंडिया में तो मुंबई को कनेक्ट कर ही रहा था, साथ ही साथ इट वाज कनेक्टेड विद चाबहार पोर्ट, ईरान, एंड बंदा अब्बास पोर्ट, बारसा पोर्ट टू. सो ईरान की राजधानी तेहरान में इसका सेकंड सेंटर था, याद रखेंगे, ईरान, इंडिया, एंड गोइंग टू इस्तांबुल, टर्की, शेफा, बेलग्रेड, वियना, ऑस्ट्रिया. ठीक है, ऐसे करते हुए फ्रांस तक चला जा रहा है. सो दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सो फार, बट अ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट इज इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर, इसको भी लॉन्च कर दिया गया G20 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. नाउ इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, इंडिया को ट्रेड एंड कॉमर्स में बेनिफिट्स मिलेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया जा सकेगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि ईजिली, जैसे कि मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, स्पाइसेस, कार्डेमम, जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होते हैं वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा. Then you will have a higher level of connectivity across the world. Now remember this thing, another important thing in this picture is Ashgabat agreement. इसे मैं दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा. That is also very important agreement. तो जियोपॉलिटिक्स के लिए ये बहुत important माइलेज रहा इंडिया के साइड से. Now India has also launched the global biofuel alliances. G20 में एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि रशिया के साथ जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, रशिया वॉज विक्टिमाइज, दैट रशिया इज़ नॉट टेकिंग द यूक्रेन मूव सीरियसली, नाटो विल गेट अलायंस. तो जो बाली वाली समिट की प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको इंडिया ने यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है. इंडिया हैज़ रिजॉल्व द बाली इशू एंड क्रिएटेड अ कोहेरेंस बिटवीन रशिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो बाली वाली समिट में 40 टाइम्स के अराउंड रशिया का नाम लिया गया था, एंड रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम दिस दैट पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया था. बट इंडिया हैज सेड नो नो, इट्स दैट्स अ बायलैटरल इशू, इट विल बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल. नाउ इंडिया हैज़ created a huge impact in this G20 meeting by creating a biofuel alliance. G20 में इंडिया ने क्या किया है? बायोफ्यूल के लिए अलायंस बना दी है. व्हाट आर बायोफ्यूल्स? सो बायोफ्यूल्स क्रिएटेड फ्रॉम शुगर केन एंड इथानॉल ब्लेंडिंग.
इथानॉल जो प्राप्त होता है, जिसे बहुत लोग शराब समझ के पी भी जाते हैं और मर जाते हैं, सो उसको प्रोसेस करके एक ग्रीन फ्यूल बनाने का निर्माण किया गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो मिक्सड विथ पेट्रोल। सो इसको कई बार पेट्रोल के साथ हम मिक्स भी कर रही हैं कई कंपनियां। सो इस पे काम चल रहा है। G20 summit has accelerated the transition of sustainable biofuel and reduced the world's dependency on traditional fossil fuel। ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, गैसेस, जिन पे डिपेंडेंसीज के चलते हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, नाउ वी आर एबल to cater that deficit and dependency in a higher version. We are able to provide the biofuels that are most necessary for the fuels purposes. So India is looking at this alliance as to means to advance energy transition in developing countries and promote circular economy. What is this circular economy? The energy led economy which is being circulated around the world। एक सर्किल में पूरी इकोनॉमी घूम रही है, जो कि एनर्जी डेफिसिट से एनर्जी सरप्लस, यानी किस देशों के पास पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, वो सारे देश एनर्जी सरप्लस हैं, बट सम कंट्रीज दैट आर लैगिंग, दैट आर अ पार्ट ऑफ एनर्जी डेफिसिट। सो द सर्कुलर इकोनॉमी विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। सो यहाँ पे CBG की बात की गई है, दैट विल हैव a G20 collaboration for renewable energy sources derived from biomass, crop stubble, plant waste, municipal solid waste and major oil importer। So इंडिया क्या है, एक मेजर ऑयल इम्पोर्टर है। भारत बहुत सारे देशों से आयात करता है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, और उसको प्रोसेसिंग की जाती है। ऑल्दो रिफाइनरीज भी इंडिया में काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रही हैं, बट simultaneously we are developing the green energy at larger version through this biofuels using the ethanol blending methodology। भारत के साइंटिस्ट भी इसमें बढ़ चढ़ के अपना रोल निभा रहे हैं, बिकॉज द सुगर केन इज लार्ज प्रोडक्शन, इज हैविंग लार्जर प्रोडक्शन इन इंडिया। गन्ने का बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पाद होता है इंडिया में, जिससे हमें बहुत सारे गन्ना के वेस्ट मिल जाते हैं, जिसको ब्लेंड करने के बाद हमें एक बायोफ्यूल की प्राप्ति होती है। इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। नाउ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एक यहाँ पे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल साउथ में कौन कौन से हैं, जो अभी हमने कल के लेक्चर में बात की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके लिए इंडिया ने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ईस्टर्न और साउदर्न नेशंस का मिक्सचर, दैट इज साउथ ईस्टर्न नेशन। अब ये जो ग्लोबल साउथ हम कहे जा रहे हैं, इसकी आवाज़ भी ऊपर उठानी है ना। जो साउदर्न नेशंस, इंडिया हो गया यहाँ पे, और इसके अराउंड जो सारे मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे देश जो G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड देयर वॉइस अलॉन्ग विद द साउथ अफ्रीकन नेशन, AU, अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, एंड अफ्रीकन यूनियन अलॉन्ग विद द एशियन and the other eastern nations are raising their voice of global south। So India, along with the capacity building, offering the expertise, access of technical support to the national program and promoting policy lesson sharing, countries, ecosystem players, key stakeholders in mapping demand and supply, as well as connecting technology providers to the end users। और ये क्या कर रहा है, साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट के माहौल को पैदा करेगा। आपसी सहयोग के द्वारा हम कैसे एनर्जी सरप्लस हो सकते हैं, वॉट एवर कंट्रीज इन अफ्रीका और इन टर्म्स ऑफ मिडिल ईस्ट हुआ, इन टर्म्स ऑफ साउदर्न नेशंस, विच एवर फेसिंग डिफिकल्टीज इन द एनर्जी प्रॉब्लम, एनर्जी सरप्लस में जिन्हें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो सारे कंट्रीज़ को हम एक साथ लाएंगे, and we will have a shared responsibility to develop biofuel with each other, to have a recognized standards, codes and sustainability principle to regulate the incentives biofuel adoption trade।
सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अब इंडिया ने इसकी फॉर्मली पुश कर दिया है, G20 ने एक्सेप्ट कर लिया है दैट देयर शुड बी अ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दैट हैज़ बीन रेटिफाइड by all member nations and it has been formally accepted. So what is this alliance? So especially in the transportation sector and helping to enhance market, supporting global biofuel trade policy insights and provide the technical assistance to the national biofuel program worldwide. आपको पता होगा जो लोग करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे होंगे दैट भारत सरकार ने इंडियन बायोफ्यूल प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया हुआ है। साथ ही साथ बायोफ्यूल्स के डेवलपमेंट के लिए हम नई नई पॉलिसीज़ बना चुके हैं, जिससे हमें बहुत सारे शुगर केन मोलासेस उसको एक्सप्लॉइट करके इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। तो वो सेकंड और थर्ड फ्यूल में ब्लेंडिंग हो रही है एंड दैट आर बीइंग यूज्ड इन द बायोफ्यूल। नाउ ये बायोफ्यूल के लिए मार्केट चाहिए जहाँ पे वो सेल आउट होंगे। We are as India creator of biofuels are searching those kind of markets in the global south, यानी अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन यूनियन को हम ये बायोफ्यूल सप्लाई करेंगे। So the initiative aligns India's goal of transitioning the alternative fuels and reducing its carbon emission, a target of achieving net zero emission by 2070. सो 2070 तक इंडिया ने टारगेट रखा है नेट ज़ीरो एमिशन का, जिसमें कि पूर्ण रूप से जितना भी धुआं प्रदूषण गैसेस निकल रहे हैं जिससे पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको हम ज़ीरो लेवल पे ले आएंगे आफ्टर 50 ईयर्स। 23 इज देयर। सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ डायनासोर बर्ड। इसका नाम है फुजिना विंटर प्रोडिजियस, फुजियान विंटर विनेटर प्रोडिजियस। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट ग्रीक नेम। आप इसे देखते हैं ये क्या है। सो इट इज़ अ ग्रुपिंग कॉल्ड एविएटन्स and that includes all birds and their closest not avian dinosaur relatives. ये डायनासोर के रिलेटिव्स का बर्ड है and that has been extincted around 66 million year ago and it's their non-avian dinosaur comrades. जो डायनासोर और नॉन डायनासोर्स के बीच जो फाइट हुई उसके बीच में ये एवियन बर्ड्स इंड हो गए हैं। So they are extinct now. So it has a low leg bone tibia, its tires long as bone as the femur and it is among the theropods who has long bony tail. इसकी टेल जो होती है लॉन्ग होती है और बोनी होती है, तो इसलिए थेरोपॉड कैटेगरी का है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड ऑफ दैट एज। नाउ इट इज़ अराउंड द जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पार्क लोगों ने आप लोगों ने मूवी देखी होगी। नाउ व्हाट इज़ दिस जुरासिक पार्क? जुरासिक पीरियड इज़ अ 3 पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा। जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ी होगी थोड़ी डिटेल में या जियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा सेनोजोइक, मेसोजोइक, क्रेटासियस, ट्रायसिक पीरियड, ये सारे पीरियड्स हैं। इनके बीच ये डायनासोर लाइक बर्ड एग्जिस्ट करते थे एंड दे हैव यूज फाइट with other species also for their existence. Therefore, Darwin has given famous theory of survival of fittest and theory of natural selection. किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। सो इसके कुछ अवशेष कहाँ पाए जा रहे हैं? अटलांटिक ओशन में एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच। Now what is Cretaceous period? Sometime you have seen this question. Cretaceous period is a geological time last of the Mesozoic period. So Mesozoic, Cretaceous and Paleogenic period. ऐसे पीरियड्स हैं जो सक्सेसिवली पास हुए हैं। नाउ इट इज़ फॉलोड बाय द जुरासिक पीरियड। इसके बाद है जुरासिक पीरियड, इसमें ये सारे जानवर हमें लास्ट टाइम देखने को मिले।
So Paleogenic is first of the two periods and into the which tertiary period was divided. So Cretaceous is the longest period of Phanerozoic eon. इस eon को याद रखेंगे. So there is eon, epoch and era. Eon, epoch and era ऐसे होते हैं ये. नाउ यूपीआई लाइट वाई इट वॉज सीन इन न्यूज़. अभी आप पेमेंट कर रहे थे, बहुत सारी पेमेंट ऐप्स आई हुई हैं, उसके बीच जो यूपीआई ने जो एन पी सी आई एल है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट हैज़ लॉन्च्ड यूपीआई लाइट, जिसमें अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिकॉज आप देख रहे थे कि प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिनके पास इंटरनेट वगैरह नहीं रहता था वो लोग की पेमेंट हैंग हो जाती थी. Now UPI Lite has been an app that can work without internet also. So इसके features वगैरह क्या हैं देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. Now UPI Lite will facilitate with QR code near field communication. NFC पेमेंट को ये प्रमोट कर रहा है UPI Lite. Near field communication through satellite communication, and it can work without internet, so no internet is even required, and it can track the QR code. So it will reduce 50% of transaction load. It will have minimum payment of 20 rupees, not 200, just 20 rupees. If you are having, you can start it. UPI Lite gives near offline payment experience, यानी कि नेटवर्क नहीं है तो भी आप पेमेंट सक्सेसफुली कर पाते हो. एंड यूपीआई लाइट में रिड्यूस लोड ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम को हटा के ये सीधे पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह में देखने को मिलता है, उस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रेड ये कर सकता है. नाउ इट हैज़ सिंप्लीफाइड द ट्रांजेक्शन बाय हैविंग NFC इनेबल्ड QR, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन. पहले जो QR बन रहे थे ऐसे करके आप देखते थे कि बार कोड आते थे कुछ, अब इसको स्कैन करने के बाद यू विल बी गेटिंग सम बेनिफिट्स. इसको स्कैन करने से कुछ चीज़ें आपको मिलती थी, जिससे आप ट्रांजैक्ट करते थे या पेमेंट प्रोसीड होता था. नाउ विदाउट ट्रांजैक्टिंग दिस थिंग देयर इज़ अ NFC इनेबल्ड QR, दैट इज़ a near field communication based QR that do not require any internet or such thing. या बिना इंटरनेट के भी आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी. सो दैट इज़ इनेबल्ड थ्रू विदाउट इंटरनेट पेमेंट, एंड इट इज़ प्रोसेस थ्रू UPI पेमेंट, UPI एप्स, टेलीकॉम कॉल एंड IoT डिवाइसेस इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड इट विल बी प्रोसीड थ्रू अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो ये वॉइस इनेबल्ड है, यानी कि गांव में या रूरल एरियाज़ में बहुत लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते. सो इफ़ दे जस्ट ओपन द मोबाइल ऑन करके वो हेलो बोलते हैं, हेलो UPI लाइट, तो उनका UPI लाइट ओपन हो जाएगा और वो अपना ट्रांजेक्शन QR कोड को स्कैन करके सक्सेसफुली कर लेंगे. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग बिल पे कनेक्ट, कन्वर्सेशन बिल पे कनेक्ट with payment that can be made across India through a nationalized number of made भारत बिल पे. भारत बिल पे अवेलेबल करा रहा है नेशनलाइज सिस्टम कन्वर्जन, ये इसकी खासियत है. सो NPCI क्या है दोस्तों? NPCI एक क्या है? रेगुलेटरी बॉडी. NPCI इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एश्योर करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये प्रमाणित है. दैट मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. तो इसे याद रखोगे, RBI प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये जॉइंट वेंचर है, एंड इट इज़ अ regulatory body. So it is made through the Payment and Settlement System Act of 2007 to create a robust payment and settlement infrastructure in India. कौन सा एक्ट है? Payment Settlement System Act 2007. Payment Settlement System Act of 2007 provides you the facility
to have the settlement of this payment. So it has been incorporated as a not for profit company under the sections 25 of Companies Act, now section 8 of the Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट के द्वारा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, यानी इट इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी एंड इट इज़ गाइडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ गाइडिंग पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, HSBC। सो ये इसकी डिटेल्स हैं। नाउ व्हाट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो NPCI में यूज़ हो रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि विदाउट इंटरनेट ये काम कर सकता है। सो व्हाट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन? Near field communication is a short range wireless communication technology that allows devices to communicate with each other when they are in close proximity। यहाँ समझिए, ये डिवाइस A है, ये डिवाइस B है। नाउ डिवाइस A और B के बीच कोई नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क। अब यहाँ से पेमेंट B डिवाइस को ट्रांसफ़र करनी है, तो A डिवाइस वाला इसका QR कोड स्कैन करेगा। स्कैनिंग दिस QR कोड, A डिवाइस विल ऑल्सो नीड एन इंटरनेट सिस्टम। अगर इसके पास इंटरनेट सिस्टम नहीं है देन इट विल फेस प्रॉब्लम। देन कम्स अ शॉर्ट रेंज नेटवर्क कवरेज थ्रू द मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होती है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि QR कोड के साथ साथ उसकी अदर डिटेल्स यानी नंबर वगैरह भी शेयर हो जाते हैं। नाउ नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू दे कैन ट्रांसफ़र द पेमेंट टू ईच अदर, यानी इसके पास इसका वॉलेट है, दूसरे वाले डिवाइस के पास इसका वॉलेट है। नाउ ही इज़ ट्रांसफरिंग हिज मनी टू द अदर विदाउट एनी बैंकिंग प्रोसीजर। ठीक है, सो ही डू नॉट नीड एनी इंटरनेट कनेक्शन। नाउ दैट इज कॉल्ड एज NFC पेमेंट मॉड्यूल। NFC operates at radio frequency of 13.56 megahertz and it is a subset of radio frequency identification technology। RFID के द्वारा ये ऑपरेट हो रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नाउ वाइड फील्ड सर्विस टेलीस्कोप क्या होता है? फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, बिकॉज टेक्नोलॉजी से बार बार क्वेश्चन आते हैं सारे UPSC, BPSC, UPPSC में। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप, व्हाट इज दिस टेलीस्कोप अबाउट? टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच मैग्नीफाइज द इमेज। आप एक जगह पे बैठ के किसी इमेज को देख रहे हो तो उस इमेज को ये मैग्नीफाई कर देता है। तो आप बोलोगे सर टेलीस्कोप और दूरबीन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सो देयर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंस को कंबाइन किया जाता है इन विच रे ऑफ लाइट passes slowly over there and reach to the other part। So what is field survey telescope? It is a largest time domain survey facility in the northern hemisphere and its objective is to explore and monitor dynamic astronomic events। यानी कि खगोलीय क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार, इन टर्म्स ऑफ मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, जो भी मेटियोर्स के मूवमेंट हो रहे हैं या स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं व्हेन रिलेटेड टू मून, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान एक्सेट्रा, एनी सेलेस्टियल सिग्नल दैट इज डिटेक्टेड थ्रू द गैलेक्सीज, फॉर एग्जांपल मिल्की वे और गैलेक्सी क्लस्टर, वो फील्ड सर्वे टेलीस्कोप के द्वारा ट्रैक कर लिए जाएंगे। एंड इट हैज़ सेंट टू फाइंड एंड ट्रैक 10 लाख सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स and it is moving around the Kuiper belt and beyond। तो जो अपने कुपियर बेल्ट में जो भी प्लैनेट्स के मून्स वगैरह घूम रहे हैं, अगर वो 10 लाख सोलर सिस्टम की दूरी पे भी हैं तो भी उन्हें हम ट्रैक कर लेंगे एंड वी विल प्रोवाइड देयर प्रॉक्सिमिटी।
So telescope is located at the Lendu Astronomical Observation, northwest China's Qinghai province. याद रखेंगे. And it has average altitude around 4000 meters, offer optimal condition for clear night skies, stable atmospheric condition, dry climate, minimum artificial light pollution, and it is recognized as one of the best observatory site in the Eurasian continent. तो ये बेस्ट साइट का नाम दिया गया है. एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना एंड पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी अंडर चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस. नाउ इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूएसए जॉइंट स्टेटमेंट. अपार्ट फ्रॉम G20 वी सॉ फर्दर ग्लोबल अलायंस डेवलपमेंट. सो जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इब्सा हमारी एक अलायंस थी, है ना, अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ, अगेन अपोजिंग अ ग्लोबल साउथ. तो उसके अंदर यूएसए ने एक जॉइंट मीटिंग की, दैट इज़ टू मेक एडिशन विद द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट to welcome the G20's commitment to build better, bigger and more effective multilateral development banks to support G20. So G20 को सपोर्ट करने के लिए इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए ने एक कॉमन डायलॉग शेयर किया. So this is the picture for partnership in global infrastructure investment. भारत के द्वारा एक infrastructure investment project that is PGII and India Middle East Europe Economic Corridor, ये हमने पढ़ लिया. अब देखते हैं partnership for global infrastructure investment क्या है. Now partnership for global infrastructure and investment is a group that is made under the leadership of PM Modi and Joe Biden, the president of USA, to provide the funding for the development of infrastructural development in the India, Middle East and Europe. So leaders from different community has uh, combined together to reduce the infrastructural gap. जो ढांचेगत विकास में कोई प्रकार की कमी आ रही हो या किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, उसको फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का निर्माण किया गया है. एंड दैट पार्टनरशिप विल एक्ट एज अ फंडिंग सिस्टम and also will provide funds on the sustainable development goals. Now IMEC is also made through the Gulf region, India Middle East European corridor. It connect Gulf region to Europe, ये हमने पढ़ लिया. and IMEC के बीच एक MOU भी होगी. Memorandum of Understanding has been signed between India, USA, Saudi Arabia, UAE, EU, Italy, France and Germany. So I end this class over here. Thank you and wish you all the best for the upcoming examinations. Jai Hind, Jai Bharat.